کہ مراد علی شاہ پر قسمت کی دیوی پھر مہربان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہی ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے منظوری دے دی۔ نومنتخب ارکان اسمبلی کو کراچی پہنچنے کی ہدایت۔ 2 سے 3 روز میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جام شوروں سے تعلق رکھنے والے مراد علی شاہ کو سیاست وراثت میں ملی، تاہم انہوں نے وراثت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ ان کے والد عبداللہ شاہ بھی سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ مراد علی شاہ 8 نومبر 1962 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سینٹ پیٹرک اسکول سے میٹرک کیا۔ NAD یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے سول انجینئرنگ میں بیچلرز کیا۔ یہ ڈگری سلور میڈلسٹ اعزاز کے ساتھ حاصل کی اور قائد اعظم اسکالرشپ کے حقدار قرار پائے۔ مراد علی شاہ نے کیلیفورنیا کے اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ماسٹرز اور اسی یونیورسٹی سے اکنامک سسٹمز میں دوسری ماسٹرز ڈگری لی۔ مختلف اداروں میں خدمات انجام دینے کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور 2002 میں جامشورو سندھ سے بطور ممبر صوبائی اسمبلی سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ سن 2018 میں پھر منتخب ہوئے اور آب پاشی کی وزارت بھی پائی۔ سن 2016 میں وزیر اعلیٰ سندھ منتخب ہوئے۔ جولائی 2016 میں قائم علی شاہ کی جگہ انہیں صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، جس کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد پھر صوبے کے سربراہ کا تاج بھی انہی کے سر سجا۔ شہر خموشہ میں مسائل کے انبار، قبرستانوں میں منشیات فروشوں کے ڈیرے۔ MPR کالونی کے قبرستان میں درجنوں مسائل، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، پانی ناپید، 4 دیواری بھی غائب ہو چکی۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ شہر قائد میں انتظامیہ کی نااہلی سے قبرستان بھی محفوظ نہ رہے۔ MPR کالونی کا وسیع رقبے پر پھیلا قبرستان 4 دیواری سے محروم۔ قبروں کے لیے پانی بھی موجود نہیں، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر آنے والوں کو پریشان کرنے لگے۔ گورکنوں کی پانی کے لیے فریاد۔ گورکنوں قبرستان کا سر پانی کی بہت ساری قلت ہے۔ 150 فٹ ہوا ہے بورنگ، صحیح ہے، پر پانی کی لین آگے سے جا رہی ہے۔ یہ عامر صاحب کو اللہ زندگی دے، اس نے یہ اتنا کیا کہ آپ لوگوں کو بلایا، اور زیادہ سے زیادہ ہماری یہ گزارش ہے، پانی بک رہا ہے لیکن پانی کی ہم لوگوں کو اتنا نہیں کہ پانی کی لین دے۔ ایسے حالات بنایا ہوا ہے کہ ابھی تو شب بارات بھی آنے والا ہے، نہ کوئی صفائی کا انتظام ہے، نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ سیوریج کے پانی جب بارش آتے ہے تو پورا کا پورا پانی یہ قبرستان میں آتا ہے۔ قبرستان کی بے حرمتی میں سندھ سالڈ ویسٹ ضلع عربی بھی برابر کا شریک۔ قبرستان سے کچرا کنڈی کو ختم کرنے کے بجائے اسے ڈمپنگ پوائنٹ میں بدل دیا گیا۔ MPR کے قبرستان جو کہ ہے یہ کافی ایکڑ پہ بنا ہوا ہے، اور اس کے باؤنڈری وال کوئی دیوار نہیں ہے۔ یہاں پہ قبضہ مافیا والوں نے بھی کچرے کا لین لگایا ہوا ہے، گاڑیاں آتی ہے اور یہاں سے صرف اپنے کچرے کی وہ اپنے ہی صفائی کر کے، اور بقایا ادھر اتنا بدبو قبرستان کے اندر، کچرا اتنا پڑا ہوا ہے، اور کچرے کے علاوہ کچرا لوگ بہت ہے وہاں پہ جو نشہ کرنے والا ہے، اور وہ نشہ کرنے والا جو ہے نا، وہ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ حکومت کو مانتے ہیں، مسجدوں سے بھی چوریاں کرتا ہے۔ یہ پوری علاقہ اس کے زیر انڈر ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ شب برات سے قبل قبرستان کی حالت درست کی جائے تاکہ یہاں آنے والے اپنے پیاروں کے لیے تلاوت اور سکون سے دعا کر سکیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ مسالہ جات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ 6 ماہ کے دوران ثابت کالی مرچ 800 روپے سے بڑھ کر 1600 روپے کلو ہو گئی۔ لونگ 1700 روپے سے بڑھ کر 3800 روپے کلو تک دستیاب۔ صدر شہاب الدین مارکیٹ محمد اسلم بولے کہ مسالہ جات درآمد کیے جا رہے ہیں جبکہ طلب بہت زیادہ ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ شہریوں کے لیے کھانوں کے مسالوں کا حصول بھی مشکل۔ مسالہ جات کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں۔ ڈالر کی قیمت میں اضافے کے ساتھ سامنے آنے لگے۔ درآمد ہونے والے مسالہ جات مہنگے ہو گئے۔ ثابت کالی مرچ 800 روپے کلو سے بڑھ کر 1600 روپے کلو پر پہنچ گئی۔ لونگ 1700 روپے کلو سے بڑھ کر 3800 روپے کلو جا پہنچی۔ دار چینی 360 روپے کلو سے بڑھ کر 860 روپے کلو ہو گئی۔ بڑی الائچی 4500 سے بڑھ کر 6800 روپے کلو۔ سفید زیرہ 1800 روپے سے بڑھ کر 2200 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ تاجروں نے مسالہ جات مہنگے ہونے کی وجہ طلب میں اضافے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کو قرار دے دیا۔ ہمارے ملک میں تمام گرم مسالے باہر سے آتے ہیں درآمد کر کے، اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ جب ہوتا ہے برابر میں ڈالر کے سور ہوتا ہے۔ اب معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب یہاں خریداری نکل آتی ہے تو دم بڑھ جاتے ہیں،
जब बाहर से आएंगे तो वो आएंगे डॉलर के हिसाब से। ताजिरों का कहना है कि मुल्क में मसाला जात वियतनाम, ब्राज़ील, चाइना, भारत और दीगर ममालिक से दरामद किए जाते हैं। डॉलर की कदर में इजाफे से दरामद अशिया के रेट खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 20। कहीं किताबों की रहनुमाई, कहीं महफिल गज़ल तो कहीं फिल्म स्क्रीनिंग, मुख्तलिफ मौज़ूआत और पैनल डिस्कशंस इल्म के मोती बिखरते, जबकि कराची लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। 15वें लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ कराची के मकामी होटल में 2 रोज़ पहले किया गया था, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस के कौंसल जनरल ने शिरकत की। 3 रोज़ पर मुश्तमिल अदबी मेले में 75 से ज़ायद सेशन मुनक्किद किए गए, जिसमें 8 ममालिक के 200 से ज़ायद मुकर्रिरीन ने शिरकत की। मुख्तलिफ सेशंस में तालीम, नसर निगारी, शायरी, मुशायरा, बेतबाजी, सियासत, माहौलियात और तालीम के मौज़ूआत पर माहिरीन ने अपनी आरा पेश की, जिसमें सिंधी और पश्तो के हवाले से मंजरनामे भी पेश किए गए। आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी शिरकत की, जिसमें क्योंकि आज इसका तीसरा और आखिरी रोज़ है, तो हम भी अंदर चलते हैं और आपको आज का अहवाल बताते हैं और यहाँ के शुरका से भी जानते हैं कि अदबी मेले में उन्होंने क्या सीखा और आने वाले अदबी मेले से वो क्या उम्मीद लगाते हैं। जी आइए। जो चेंजेस पिछले साल से आए हुए हैं, दे आर वेल इनफ इन ऑलरेडी बिकॉज वी गॉन टुवर्ड्स मोर एक्सप्लोरेटिव थीम्स, वी गॉन टुवर्ड्स डाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी, we've gone towards exploring the different topics regarding Gaza, and we went over the Balochistan issue, and we went over everything that's like politically correct at the minute. बहुत नई जो है वो यहाँ पे किताबें मुझे देखने को मिली, मैंने पढ़ी भी, जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, वो सब कुछ समझती हूँ ये इतना ज़रूरी है कि इंग्लिश के नॉवेल्स जो पढ़े जाते हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट करें ताकि ज़्यादा लोगों से कनेक्टिविटी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अदबी मेला कराची और पाकिस्तान की पहचान बन गया है, जो हर साल आलमी सतह पर तरक्की कर रहा है। मैं इस वक्त किताबों के पोर्शन में मौजूद हूँ और ये कहना या ये बात वाज़ेह हो गई है कि अदब जो है वो आज के दौर में भी लोगों में अहमियत रखता है। तो आइए दोबारा मेले की तरफ चलते हैं और आपको मेले की गहमा गहमी दिखाते हैं। इल्म और अदब के सजे 15वें अदबी मेले की खासियत ये है कि यहाँ पर आने वाले शुरका को अपने पसंदीदा लोगों के साथ मिलकर तस्वीर बनाने का मौका मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर सियासी, समाजी, अदाकार, फनकार, गुलकार समेत सहाफ़ी बिरादरी भी शिरकत कर रही है। तो आम लोगों की राय तो हमने जानी अदबी मेले के हवाले से, लेकिन सहाफ़ी बिरादरी इसे किस नज़रिए से देखती है और अदबी मेले के हवाले से सहाफ़ी बिरादरी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी 20 साल से स्क्रीन पर आ रहा हूँ। मैं एक आम आदमी ही अपने को समझता हूँ और उस आम आदमी की आवाज़ पहुँचाता भी हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है ग़ालिबन मैंने शहर गांव अभी इस इलेक्शन में भी मैं कराची, मुसक्खर, मुल्तान हर जगह गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं तो एक आम आदमी ही हूँ। 15वां कराची फेस्टिवल है तो ये कंटिन्यूटी सबसे उम्दा चीज़ है। मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ कोई पिछले 7-8 साल से। मुझे वो सेशन भी याद है जो कोविड के ज़माने में ऑनलाइन हुआ, तो इन्होंने कभी भी जो सिलसिला है उसको टूटने नहीं दिया। कुछ सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं, सवालात करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। तो अगर आप के पास इल्म नहीं होगा और आपने किसी उन सब्जेक्ट्स पे जिन पे आप बात करते हैं उन पे पढ़ा नहीं होगा, तो ज़ाहिर है आप सवालात भी उस तरह नहीं कर सकते। जी, कराची लिटरेचर फेस्टिवल की गहमा गहमी जारी और सारी है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल 15 साल पहले, जिसका आगाज़ पहले अदबी मेले से किया गया था, वो सिर्फ किताब की रोनुमाई पर मुश्तमिल था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया इसमें हर मौजू पर बात की जाती है, लिहाजा ये अब हमारे मुआशरे में एक मुस्बत किरदार अदा करता है और यही वजह है कि ये आलमी सतह पर अपना नाम बना रहा है। लेकिन अगर बात करें कराची लिटरेचर फेस्टिवल की, तो यहाँ पर इस वक्त जो आज 32 सेशन का इनेकाद किया गया था वो तमाम जो है वो अब ख़त्म हो चुके हैं। जो यहाँ के शुरका हैं वो अब मेन गार्डन की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सूफ़ी कवाली का इनेकाद किया गया है। तो आइए चलते हैं गार्डन की तरफ और आपको सूफ़ी कवाली की तरफ लेके जाते हैं। 3 रोज़ पर मुश्तमिल 15वें लिटरेचर फेस्टिवल के इख्तिताम पज़ीर होने पर शुरका का कहना है इस किस्म की अदबी इल्मी सरगर्मियाँ बार बार होनी चाहिए, ताकि दौरे हाजिर के घुटे हुए माहौल में लोगों को कहीं किसी हवा का ताज़ा झोंका मिल सके। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिटी काउंसिल का इजलास 22 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास दोपहर 2:30 बजे बल्दिया उस्मा कराची की मरकज़ी इमारत में काउंसिल हॉल में होगा। 10 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बल्दिया उस्मा कराची के अस्पतालों की सर्विसेज में बेहतरी लाने की मंजूरी ली जाएगी।
बल्दिया उस्मा कराची के पार्कों की तज़य्युन आराइश और सोलर सिस्टम नस्ब करने से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। महकमे चार्ज्ड पार्किंग बल्दिया उस्मा कराची को दर्ज सिफारिशात के मुताबिक पार्किंग फ़ीस वसूल करने की मंजूरी ली जाएगी। शहर के लिए नुमाया खदमात अंजाम देने वालों को तमग़ा कराची माह नक़द इनाम से भी मुतालिक मुशावरत की जाएगी। सदर मोबाइल मार्केट के अतराफ पार्किंग माफिया का राज है। शहरियों से 50 रुपये पार्किंग फ़ीस वसूल की जाने लगी। पार्किंग वाले 50 रुपये लेकर पर्ची तक नहीं देते। शहरियों का शिकवा, गुंडागर्दी बंद कराने और मोटरसाइकिल फ़ीस 10 रुपये करने का मुतालबा। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में पार्किंग माफिया को नकेल न डाली जा सकी। शहर में जगह जगह पार्किंग के नाम पर शहरियों की जेबें खाली कराने का सिलसिला जारी है। सदर मोबाइल मार्केट के इतराफ मोटरसाइकिल पार्किंग के 50 रुपए तक फीस वसूली की जा रही है। मार्केट आने वाले शहरी कहते हैं 50 रुपए लेने के बावजूद पर्ची नहीं देते। मोटरसाइकिल पार्किंग में न लगाने पर उठा ली जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि KMC के मुकर्रर करदा फीस 10 रुपए वसूल की जाए। 50 रुपए ले रहे हैं, कोई सवाल नहीं है, कोई बोल नहीं रहा, कोई एक्शन नहीं उठा रहा, तो उस पर सवाल होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे है? सिर्फ लिख रहे हो बस, चल भाई पर्ची वच्ची नहीं है तो काय के दें किस चीज़ की बस है। कोई पर्ची हो तो बाहर समझ में आता है गवर्नमेंट ने ऐलान करा है, ना गवर्नमेंट ने पर्ची बना के दिया, कुछ ऐसे लिखा बस 50 रुपये ले रहे हैं। हाँ, जो रेट तय है वो लेने चाहिए। 10 रुपये का तय है तो 10 रुपये, 40-50 रुपये लेके जो है ना फिर थोड़ा जुल्म है आम के साथ। वैसे महंगाई है बहुत, फिर लिफ्ट उठा लेते हैं, फिर वो चालान भरना पड़ता है उनका। तो थोड़ा ये है कि बस इंशाल्लाह जो ना अगर जो रेट तय किया उस पर ले तो आवाम के लिए भी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। दूसरी जानिब शहर के कई इलाकों में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज भी बरकरार है, जिसे रोकने वाला कोई नहीं। कैमरामैन अजलान चिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कि कराची में एलानिया और गैर लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। कोरंगी 4 नंबर पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुँच गया। तवील लोड शेडिंग से कमर्शियल सार्फिन परेशानी में मुब्तला हो गए। दर्जियों ने माह रमज़ान से कबल ही कपड़े लेने से इनकार कर दिया। नुमाइंदा नमरा रियासत वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल शहर कायद में मौसम तब्दील हो गया, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग के औकात कार में कोई तब्दीली नहीं आई। इस वक्त कोरंगी 4 नंबर के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त हम कोरंगी 4 नंबर के इलाके में मौजूद है और यहाँ जो है एक छोटी सी मार्केट है और इस वक्त मेरे कैमरामैन वकास लोधी आपको दिखाएं तो फोटो स्टेट्स की दुकान है, दर्जी की दुकानें हैं और वो तादिद ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर तमाम काम जो है बिजली से किया जाता है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग से इनका काम जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस वक्त हमारे हमरा जो है वो दर्जी मौजूद हैं जो इस वक्त काम में मशगूल है और इस वक्त भी यहाँ पर जो है बिजली की लोड शेडिंग हुई है। तो हम उनसे बात करते हैं कि कितने घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग होती है। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है और आपका काम किस तरह से मुतासिर हो रहा है? भाई सुबह आते हैं तो लाइट नहीं होती, आज सुबह से लाइट नहीं है और तकरीबन 1.5 घंटे आती है और 1.5 घंटे चली जाती है। काम ले ही नहीं रहे, काम लेना बंद कर दिया ईद का, क्योंकि ईद का टाइम में किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते, सबको एक टाइम पे चाहिए कपड़े कि ईद वाले दिन पहले। आम दिन में तो ये बोलते हैं चलो यार लाइट नहीं थी कल ले लेना, मान जाता कस्टमर, लेकिन ईद के तो हर कोई झगड़ा करेगा, यहाँ रश लग जाएगा, तो भाई हमने अभी से लेना बंद कर दिए कपड़े। अच्छा ये बताइएगा कि अभी भी हमने देखा है कि लाइट नहीं है, तो किस तरह से आप काम कर रहे हैं? भाई ये सोलर प्लेट लाया हूँ, तकरीबन लोगों की बातें सुन सुन के 40,000 रुपये मैंने खर्च किए। एक वक्त में एक मशीन चलती है लेकिन वो इस्त्री नहीं लगाते, उससे सिर्फ टर्बो मोटर लगी हुई वो चलती है बस। अब ये सब मशीनें देखें खाली पड़ी हैं, कस्टमर वो कारीगर है ही नहीं, छुट्टी पे चले गए क्योंकि लाइट ही चली जाती है, वो चले आते हैं। सोलर पैनल्स की जो है वो दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर हमने अक्सर दुकानों पर देखा है, जनरेटर के साथ साथ किया जा रहा है और काम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। और उन्होंने मुतालबा किया है मुतल्लिक़ा इदारों से कि जल्द अज जल्द इस पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि माह रमज़ान में जो है वो काम का जो दर्जियों के जो काम है उसका जो है सिलसिला बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये सूरत हाल बिजली की लोड शेडिंग की अगर रही, इनका काम जो है वो बुरी तरह मुतासिर होगा। जी निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर सेहत पंजाब ने आगा खान यूनिवर्सिटी के नेशनल हेल्थ साइंस रिसर्च सिम्पोजियम में शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, जो इस वक्त निगरान वज़ीर सेहत पंजाब के साथ मौजूद हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और नेशनल साइंस रिसर्च सिम्पोजियम जो है आज यहाँ पर मुनक़िद किया गया है और निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जनाब जावेद अकरम साहब इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, जिन्होंने आज बतौर मेहमान खुसूसी आज की इस सिम्पोजियम में जो है शिरकत की। इनसे बात करते हैं, आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये फरमाएगा, पंजाब में तो हम देखते हैं कि यकीनन शोबे सेहत जो है काफ़ी अच्छे से अच्छा काम कर रहा है। सर आज सिम्पोजियम में आपने
آپ نے شرکت کی ہے, کیا تجویز پیش کرنا چاہیں گے بالخصوص ہمارے شعبہ صحت کی بہتری کے لیے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, جو صحت مند انسان ہوگا, صحت مند پنجاب یا صحت مند سندھ ہوگا تو وہ پرفارم کر سکے گا. وہ اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, معاشرے کے لیے کما سکتا ہے. تو ہیلتھ اور اس کے بعد ایجوکیشن, یہ دو سب سے امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں کسی ملک کو بھی آگے لے جانے پہ, کسی صوبے کو بھی آگے لے جانے میں. پنجاب میں ہمیں تھوڑا ٹائم مل گیا 1 سال کا, اور بہت اچھے ہمیں لیڈر مل گئے سید محسن رضا نقوی کی شکل میں. تو ہم نے دن رات محنت کر کے وہ یہی پیسے جو پہلے پتہ نہیں کہاں ہوتے تھے, لیکن ہم نے اس کو صحت عامہ پہ لگائے. ساؤتھ میں ہے, نارتھ میں ہے, جہاں بھی ہے اس کو ہم نے ری ویمپ کیا. اس کو اس طرح کر دیا کہ ایک سے اچھے طریقے سے, کمفرٹیبل طریقے سے وہ مریض جو اپنے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے یا اس کے لواحقین اس کے ساتھ دے رہے ہیں, ان کو ایک کمفرٹیبل باتھ رومز ملیں, صاف باتھ رومز ملیں, ان کو اچھی چادریں ملیں, اچھے بیڈز ملیں, اور خوش خلق ڈاکٹرز ملیں, نرسیں ملیں. اس لیے پریونشن پہ خرچنا ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی پریونشن پہ جو ہے بالکل بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے. نگراں وزیر صحت پنجاب جاوید اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بے حد شکریہ. آغا خان یونیورسٹی کی 2 روزہ سمپوزیم, آج اس کا پہلا روز ہے اور کل اس کا دوسرا روز ہوگا, اور کل بھی نگراں وزیر صحت پنجاب جناب جاوید اکرم جو ہے نشست میں شامل ہوں گے.